آداب، میں ہوں محمد رفیع احمد۔ پہلے خاص خبریں۔ بھارتی فوج کے اسلحہ خانے میں شامل ہوا ایک اور اہم ہتھیار، ارجن ٹینک کو وزیراعظم مودی نے کیا فوجی سربراہ کے حوالے۔ کیرلا میں 6,000 کروڑ روپے کے پروجیکٹس کا افتتاح، سیاحتی شعبہ کرے گا مزید ترقی، وزیراعظم کا تاثر۔ حیدرآباد کو مرکزی زیر انتظام علاقے میں تبدیل کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں، مرکزی وزیر کشن ریڈی کی وضاحت۔ ایم آئی ایم کے ایم پی اسد الدین اویسی کے بیان کی مذمت۔ کمرشل ٹیکس محکمے کے عہدیداروں کے ساتھ چیف سیکریٹری سومیش کمار کا جائزہ اجلاس، آئندہ 45 دنوں میں آمدنی کا نشانہ حاصل کرنے کی ہدایت۔ اور ٹول پلازوں پر ٹریفک جام کو ختم کرنے مرکز کا اقدام، کل نصف شب سے موٹر گاڑیوں کے لیے فاسٹ ٹیگ لازمی۔ پیش تفصیل۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ کووڈ-19 کے خلاف جنگ میں بھارت کی عوام نے حکومت کی جو مدد کی ہے وہ غیر معمولی ہے۔ انہوں نے آج کیرلا کے کوچی میں 6,000 کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹس کا افتتاح کیا۔ وزیراعظم نے ساگریکا کروز ٹرمینل اور پیٹروکیمیکل کمپلیکس کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ کروز ٹرمینل کے افتتاح سے کیرلا میں سیاحت کا شعبہ اور بھی ترقی کرے گا۔ انہوں نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ سیاحت کے شعبے میں نئی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ نئے پروجیکٹس کے ذریعے کیرلا آتم نربھر بھارت میں حصے دار بنے گا۔ Not only as a transit point to go to other parts of Kerala, the culture, food, beaches, market places, historical places, and spiritual places here are widely known. The government of India is undertaking many efforts to improve tourism-related infrastructure here. The inauguration of Sagarika, the international cruise terminal in Kochi, is one example of this. Sagarika cruise terminal brings both comfort and convenience for tourists. It will cater to over 1 lakh cruise guests. وزیراعظم نریندر مودی نے آج اندرون ملک تیار کردہ ارجن جنگی ٹینک مارک 1A کو فوج کے حوالے کر دیا۔ چنئی میں منعقدہ ایک تقریب میں انہوں نے فوج کے سربراہ جنرل ایم ناروانے کو یہ ٹینک حوالے کیا۔ آتم نربھر بھارت کے تحت تیار کیا جانے والا یہ ٹینک فوج میں شامل کیا جانے والا دوسرا بڑا ہتھیار ہے۔ ڈی آر ڈی او نے یہ جدید ٹینک تیار کیا ہے۔ اس پروجیکٹ میں 15 تعلیمی ادارے، 8 لیبارٹریز اور کئی چھوٹی اور درمیانی درجے کی کمپنیز شامل ہیں۔ بعد میں وزیراعظم نے چنئی میں 3,770 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والے میٹرو ریل کے پہلے مرحلے کا افتتاح کیا۔ انہوں نے چنئی بیچ اور اٹیپاڈو کے درمیان چوتھی ریلوے لائن کا بھی افتتاح کیا۔ وزیراعظم نے آئی آئی ٹی مدراس کی ڈسکوری کیمپ کا سنگ بنیاد رکھا، جو 1,000 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جائے گا۔ اس موقع پر منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے تمل ناڈو کے کسانوں کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے غذائی اجناس کی ریکارڈ پیداوار حاصل کی ہے۔ 2 سال قبل آج ہی کے دن پلوامہ میں دہشت گرد حملے میں شہید سی آر پی ایف جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ملک کبھی بھی ان شہیدوں کی قربانیوں کو فراموش نہیں کرے گا۔ Vanakkam. The city is full of energy and enthusiasm. It is a city of knowledge and creativity. From Chennai today, we begin key infrastructure projects. These projects are symbols of
innovation and indigenous development. These projects will further the growth of Tamil Nadu. I am proud to hand over the indigenously designed and manufactured main battle tank Arjun Mark 1A. It also uses indigenous ammunition. Tamil Nadu is already the leading automobile manufacturing hub of India. Now, वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पुलवामा हमले में शहीद सीआरपीएफ जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मुल्क कभी भी इन जवानों की अजीम कुर्बानी को फरामोश नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत शहीद फौजियों के खानदानों के साथ खड़ी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने भी शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि पुलवामा में जान की कुर्बानी देने वाले सिपाहियों को मुल्क हमेशा याद रखेगा। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटक के बीएस येदियुरप्पा और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने भी शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत हैदराबाद को मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके में तब्दील करने का कोई इरादा नहीं रखती। उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी के इस बयान की मजम्मत की कि हैदराबाद को मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके में तब्दील किए जाने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि किसी भी इलाके को मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके में तब्दील नहीं किया जाएगा। किशन रेड्डी ने कहा कि मरकज हैदराबाद के बशमूल तमाम शहरों को तरक्की दे रहा है। उन्होंने हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर एमएलसी हल्के के लिए होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में रामचंद्र रेड्डी के साथ मिलकर एक इजलास में शिरकत की। किशन रेड्डी ने इस यकीन का इजहार किया कि बीजेपी एमएलसी की दोनों नशिस्तें जीत लेगी। रियासती वजीर ए इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि हुकूमत लड़कियों को मेयारी तालीम की फराहमी के लिए केजीबीवीज को मुस्तहकम कर रही है। उन्होंने निर्मल जिले के मामड़ी मंडल के न्यू सांगवी गांव में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लड़कियों को लड़कों की मसावी मेयारी तालीम की फराहमी के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का क़याम अमल में आया है। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत इन स्कूलों के लिए तमाम सहूलतों से लैस इमारतें तामीर कर रही है। इस मौके पर उन्होंने तालिबात से बातचीत की और उनके साथ दोपहर का खाना खाया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कमर्शियल टैक्स महकमे के ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्कद किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो आइंदा 45 दिन के अंदर आमदनी का निशाना हासिल कर लें। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो आमदनी के हुसूल पर खास तवज्जो दें। इसके लिए रियासत भर में 1376 ओहदेदारों पर मुश्तमिल 460 टीमें तश्कील दी गई हैं। चीफ सेक्रेटरी मुल्क भर में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में नुमाया कारकर्दगी पर महकमे की सताइश की। मरकज ने ऐलान किया है कि टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम फास्टैग कल आधी रात से लाजमी हो जाएगा। जिन लोगों ने अपनी गाड़ियों पर फास्टैग नहीं लगाया है या जिनके टैग काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें दुगनी फीस अदा करनी होगी। हुकूमत ने कहा कि कौमी शाहराहों पर टोल प्लाजा के तमाम फी लेन पर टैग के इस्तेमाल की सहूलत फराहम रहेगी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के आदोदशुमार के मुताबिक तेलंगाना में 82% टोल प्लाजा पर फास्टैग के इस्तेमाल की सहूलत है। गुज़िश्ता 1.5 साल से इस निज़ाम पर अमल किया जा रहा है। हैदराबाद की खूबसूरती में इजाफा करने वाले नौ तामीरशुदा केबल ब्रिज पर आज एक और अहम प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। दुर्गम चेरू पर बनाए गए इस केबल ब्रिज पर आर्मी सिम्फनी बैंड ने अपने फन का मुजाहरा किया। पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की जंग में भारत की कामयाबी के 50 साल की तकमील पर यह प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। खुलासा एक बार फिर, अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज और फेसबुक पर डीडी न्यूज तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। भारतीय फौज के असलाह खाने में शामिल हुआ एक और अहम हथियार।
अर्जुन टैंक को वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने किया फौजी सरबराह के हवाले। केरला में 6,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह, सयाहती शोबा करेगा मजीद तरक्की, वज़ीर-ए-आज़म का तासुर। हैदराबाद को मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके में तब्दील करने का कोई मंसूबा नहीं, मरकजी वजीर किशन रेड्डी की वजाहत। MIM के MP असदुद्दीन अवैसी के बयान की मजम्मत। कमर्शियल टैक्स महकमे के ओहदेदारों के साथ चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का जायजा इजलास, आइंदा 45 दिनों में आमदनी का निशाना हासिल करने की हिदायत। और टोल प्लाजाओं पर ट्रैफिक जाम को खत्म करने मरकज का इकदाम, कल निफ्स शब से मोटर गाड़ियों के लिए फास्ट टैग लाजमी।